Friends, welcome to my channel. Today we are going to start this chapter of part of ecology, that is organism and ecosystem. This chapter is very knowledgeable for the environmental studies and the ecosystems surrounding us, and we have some knowledge about it. In our previous classes we have learned many things about it, and we have some knowledge about it. This unit contains 4 chapters, and they all of them are very easy, and they carry 14 marks for board exam, and that is very easy to score. And today we are going to start the first topic, the organism, the ecosystem. Both of them are the different chapters, but we have taken together because many of the easy points, easy and the hard point, we have collected and compressed it in the one unit, one topic only, that is organism and the ecosystem. We have only the important topics here, so let's start. The first topic we have to study here is the ecology part. What is the ecology? The father of ecology of India is R. Mishra, who given this statement about the ecology is that it is the interaction of form, function and factors. Interaction of form, functions and factors means that particular organism, species and their group form a unit, and they live together in their group, and they have some interactions, they have some functions, they have some factors that we have to study in the ecology part. This study of the organisms are known as the ecology. Some important topics now we have to correct here. So first topic is autoecology. It is the branch of ecology which is concerned with the study of individual organism. Students, it means in this study of ecology part, we only study about individual organism of a species. Okay, so let's take some example here. This is the cat species. We have cat species, and I have to study on particularly a part of a particular individual organism in this species. I'm taking is wildcats. Wildcats I'm taking this. So student, wildcats I'm taking in this study. So particular species having the individual organism I'm studying, that is known as autoecology. And next is the topic is called ecology. Sorry, my mistake. It's synecology. It's the branch of ecology which deals with study of groups of organisms that associated together as a unit. Means now we have to study about the group of cats, group of elephants, group of other organisms. We have to study about them. That is known as synecology. Now we have to learn about the organisms and their environment, how they live in their environment, what are the habits, what are the environment surrounding, what they need, what they eat, and many things about them, what are present in their group, what characteristics they show in this. So we have to learn in this topic. Let's start. So let's start it. Ecology at the organismic level is essential physiological ecology. It tries to understand how different organisms are adapted to their environments in term of not only survival but also reproduction. Students, here it means that ecology not only tries to understand about the environment where they live, where they live, the habitat, where the surroundings about them, and they also
understand or study about the organism, what are the variations are taking place in their reproduction. Ecology have two parts. Ecology, we can study it by their surrounding or by their reproduction. Okay, students. So they see environmental in terms not only survival but also reproduction. सर्वाइवल के तौर पे ही उसे नहीं पढ़ा जाता, उसे रिप्रोडक्शन के साथ भी पढ़ा जाता है. क्या वेरिएशन आ रहे हैं रिप्रोडक्शन में, क्या एडेप्टेशन कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन में, और क्या क्या हैबिटेट्स में वो लोग रह रहे हैं. तो इस ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट में हम ये पढ़ रहे हैं. ये जो वेरिएशंस है वो टेक्स प्लेस करते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशंस में. एनवायरमेंटल वेरिएशंस मतलब कि देखिए, एनवायरमेंटल वेरिएशंस जैसे कि अब ऑर्गेनिज्म कोई रहता है डेजर्ट में, कोई रहता है रेन फॉरेस्ट में, कोई रहता है ग्रासलैंड में, तो उनके हैबिटेट्स अलग होंगे, वो अलग उनके कैरेक्टर शो करेंगे, उनकी लिविंग लाइफ अलग होंगे, उनका ये रिप्रोडक्शन में जो एडेप्टेशन होगा अलग अलग हो जाएगा. डेजर्ट्स में जो होते हैं उनको कम वाटर मिलता है और वो लोग फिर भी सरवाइव कर लेते हैं. रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत जंगल में रहना होता है और बहुत सारे प्रेडिटर से बच के रहना होता है. ग्रासलैंड में भी बहुत सारे प्रेडिटर से बच के रहना होता है. सूखा पड़ने की बहुत संभावना रहती है ग्रासलैंड एरियाज में, और यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होता है. यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी एडेप्टेशन आपको दिखेगा, एनवायरमेंटल वेरिएशंस दिखेंगे. तो वही हम स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट. सो लेट्स move to another topic, that habitats. Habitats means it is the place where the organism lives. It represents a particular set of environmental conditions suitable for its successful growth. मतलब कि हैबिटेट्स क्या होते हैं? हैबिटेट्स वो होते हैं जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी रहने के लिए एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक ग्रुप में रहेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे, मतलब उनका घर. सिंपल तरीके से बोले तो हैबिटेट इज द होम, जहां पे वो लोग अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से बढ़ सके, वहां पे रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो सके, वहां पे उनको खाना अच्छी तरह से मिल सके. दैट इज द हैबिटेट. सब देखिए, यहाँ पे टॉपिक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऑन व्हाट ऑफ द फैक्टर्स दैट द इन्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन. See here the habitats includes both biotic and abiotic factors. देखिए, environmental factors में दो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, एक बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स मोस्ट influence growth and reproduction. It contains plant, animal, microbes, interaction of organisms. So these are the factors which includes the changes, the variations in environment. Okay, these are the biotic factors. You can study it is very easy. Next is abiotic factors, are temperature, water, light and soil. Okay, so see the temperature point. Temperature means some temperature is needed, because temperature is also plays very important role for all the organisms, like humans also. Some organism can live in the coldest region, but some can live in the warmest region, in deserts also, and some live in Antarctica, polar bears, and desert like camels and other, and some live in rainforest medium. So temperature plays a very important role. Like that, the polar bear cannot live in desert and the camel cannot live in the Antarctic, where the very cold region is that. वहां पे पोलर बियर नहीं रह पाएगा डेजर्ट में, और जैसे कि हमारा कैमल है वो नहीं रह पाएगा कहाँ पे, बर्फीले जगह पे. तो ये टेम्परेचर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है वाटर. देखिए स्टूडेंट, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैसे कि वाटर तो सबको ही पता है, तो बोलने की चीज ही नहीं है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ. ऑर्गेनिज्म में
any organism cannot tolerate the water, because if there is a shortage of water, any organism which cannot tolerate this, they will die. You can see the adaptation इसी से आता है. अब यहाँ पे जहाँ पे देखिए वाटर क्राइसिस हो गया, वहां पे तो अब वहां पे पानी नहीं मिलेगा, 2 महीने के लिए नहीं मिलेगा, सूखा पड़ गया वहां पे, तो एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट उसी तरीके से कर लेते हैं. यहाँ पे वो बताया जा रहा है. तो वाटर तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, फैक्टर प्ले करता है इन्वायरमेंटल ग्रोथ में और वेरिएशन में. तो यहाँ पे देखिए वाटर का जो पॉइंट है, मतलब कि बहुत सारे आपने, अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्स पे दिखाते हैं जो नॉलेजेबल चैनल है, जैसे कि हिस्ट्री चैनल हो गए, डिस्कवरी चैनल्स पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे नॉलेजेबल चैनल्स है जिसमें आप ये एनिमल्स के बारे में जहाँ पे जानते हैं, वो उस चैनल्स पे आपने देखा होगा बहुत सारे एडेप्टेशन, फिशेस जो एडेप्टेशन कर लेती हैं, जहाँ पे सूखा पड़ने से वाटर क्या हो जाता है, वाटर वहां पे हट जाता है, तो फिश क्या करेगी, वो तो मर जाएगी, पर दे कैन सर्वाइव इन दी स्मॉल स्मॉल, और जहाँ पे बहुत कम से कम पानी हो, मॉइस्चर में भी वो लोग सरवाइव कर लेंगे. मिट्टी जो है उसमें थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर बच जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस मॉइस्चर के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही रेन आ जाता है, जैसे ही पानी आ जाता है, तो वो लोग वापस उस पानी में चले जाते हैं. तो ये वेरिएशंस आ रहे हैं. अब देखिए ऐसा वेरिएशंस आ सकता है कि वो अडेप्ट कर सकते हैं कि वो पानी में भी रह सकते हैं, और जब पानी खत्म हो जाए तो बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स करते हैं. आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऑक्टोपस, सॉरी टॉर्टोइस है. तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं जो वाटर क्राइसिस के तौर पे आते हैं. तो वाटर क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर. नेक्स्ट इज लाइट. लाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लाइट कहीं पे अगर लाइट कम है अर्थ किसी जगह पे, जैसे कि सॉरी, वहां पे लाइट कम हुई तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. वहां पे अगर लाइट नहीं है तो plants cannot produce their food, because the photosynthesis is the only way to produce the food for the plants. Plants photosynthesis से ही खाना बना सकती हैं, most of the plants. So lights also plays very important role. अगर फोटोसिंथेसिस फिर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर पूरा चेन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि आप डीप फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि ट्रीज जो है, बड़े बड़े ट्रीज, वो लोगों ने एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना के रख लिया है, पूरी तरह से ढक लिया है उस फॉरेस्ट को ऊपर से. सनलाइट कैन नॉट एंटर्स दैट अम्ब्रेला. मतलब कि अम्ब्रेला, मेरे कहने का मतलब कि जो ट्री है ऊपर में एक अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर, बहुत सारे ट्री एक साथ मिलके बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो लाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. ठीक है, तो लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और सॉइल जो है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सॉइल पे डिपेंडेंट. सॉइल पे सब डिपेंडेंट है क्योंकि हम लोग वहीं पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं. तो सॉइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एनवायरमेंटल फैक्टर. नाउ पॉपुलेशन, it is the topic. Population, it is the unit biotic community made up of a near permanent group of interbreeding individuals of a species found in a space of particular time. तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में. देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत अगर आसान वर्ड्स में बोलें तो पॉपुलेशन का एक डेफिनेशन होगा कि population is the total number of interbreeding individuals of species found in a geographical areas में who shares a compete or similar resource. वो शेयर करते हैं, compete करते हैं for a similar resource के लिए, एक similar resource के लिए वो लोग ये सब करते हैं. तो this is known as population. देखिए population और community में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो देखिए पॉपुलेशन है क्या एक्चुअली में.
पॉपुलेशन है इट इज ग्रोइंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। सिंगल स्पीसीज का एक ग्रुप बना के रखे हैं वो पॉपुलेशन, और कम्युनिटी होता है डिफरेंट स्पीसीज का एक ग्रुप बना के रखे हैं वो होता है कम्युनिटी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एप्लीकेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में और अदर पिरामिड्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कुछ रिलेशंस है यहाँ पे, तो उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।